خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. آئے ہم جلدی سے خداوند کے کلام کی طرف آگے بڑھیں گے. میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے جس پہ کچھ دیر ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے وہ ہے بحالی یعنی ریسٹوریشن. اور آج کا ٹاپک ہے A God of Restoration، بحالی کا خدا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا بحالی کا خدا ہے. اکثر اوقات زندگی میں رہتے ہوئے ہم کیا ہے آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں اثر نو نیا زور بخشتا ہے، ہمیں پھر سے بحال کرتا ہے اور کثرت کی برکت دیتا ہے. اسی طرح آج جب کہ ہم جشن آزادی بھی منا رہے ہیں تو ہم اس کے حوالہ سے بھی خدا کے کلام میں سیکھیں گے. نہ صرف وہ ہمیں بحال کرتا ہے بلکہ ہمارے ملک کو بھی بحال کرتا ہے. ہاللیلویا. اور سیکھیں گے کہ کیسے ملک کو بحال کرتا ہے. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کوئی شخص اور کوئی کام کرے نہ کرے لامے بہت دیتا ہے، تنقید بہت کرتے ہیں. اے کام انج نہیں انج ہونا چاہیے سی، فلاں شخص کو یہ کرنا چاہیے تھا، فلاں شخص کو وہ کام کرنا چاہیے تھا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اس جشن آزادی کے موقع پر مجھے اور آپ کو ہمیں انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، اس بات کا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد بحالی کو چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ارد گرد اچھی چیزوں کو چاہتے ہیں تو وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ ہم سے شروع ہوگی. پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم سویڈن کے اندر خدا کے کلام کی منادی کے لیے موجود تھے اور دوپہر کا وقت ہوا. ہم ایک دکان کے باہر کھڑے تھے، کافی شاپ تھی، اور وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ اس کافی شاپ کے اندر لنچ بریک تھی. جس کی دکان تھی وہ شخص موجود نہیں تھا، لیکن وہاں پر ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کی پرائزز بھی لکھی ہوئی تھی. میں نے بہت سے لوگوں کو اندر جاتے ہوئے دیکھا اور وہ کیا کرتے کہ جو چیز انہوں نے خریدنی ہوتی اس کو اٹھاتے اور وہاں پر پاس ہی ایک باسکٹ پڑی تھی، اس میں اس چیز کے پیسے ڈال کر باہر آ جاتے. یہ چیز میرے دل کو اتنی اچھی لگی. میں نے کہا کہ اس ملک کے لوگوں کے اندر ایمانداری کتنی زیادہ ہے. اور میں ہنس رہی تھی. میں نے کہا اگر ہم وہاں پر کوئی چیز رکھ دیں، 5 منٹ لیے ادھر ادھر ہو جاؤ تو پیچھے سے کیا ہو جاتا ہے؟ صفایا ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم اچھے نہیں ہیں، ہم اچھے ہیں، لیکن میرے عزیزو اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ تبدیلی کو لے کر آئے. اکثر اوقات موٹر وے پہ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنی مہنگی بھی ہوں، اندر ویسے ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا، تھڑل بوتل باہر پھینک دی. ہم اس بوتل کو رکھ سکتے ہیں، جب ہم کہیں منزل پر پہنچ جائیں، ہمیں پاس کوئی ڈسٹ بن ملے، ہم اس کے اندر بھی اس چیز کو ڈال سکتے ہیں. یعنی میں نے اور آپ نے مل کر یہ ملک جو خداوند نے ہمیں دیا ہے اس کو خوبصورت بنانا ہے. یہ نہیں کہنا کہ فلاں ہی میرے لیے یہ کام کر دے، فلاں ہی میرے لیے وہ کام کر دے. جب ہم چھوٹے چھوٹے خود سے انیشیٹو لیں گے تو ہمارا ملک بھی پھر خوبصورتی کی طرف جو ہے وہ راغب ہوگا. گند کچرا ایسے کام ہم خود ہی انسان ہوتے ہوئے جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ ترقی نہیں ہوتی. پھر کیا ہے کہ ارد گرد ہمیں کچھ اچھا نہیں نظر آتا. اس لیے اس سے پہلے کہ کلام کی طرف آگے بڑھوں، اس جشن آزادی کے موقع پر رات ہم روڈ پہ جا رہے تھے تو بڑے لوگ باجے بجا رہے تھے. یہ کیسی جشن آزادی ہے؟ باجے بجا کر آپ اپنی محبت کے ایکسپریشن نہیں کر سکتے یا کسی کو تنگ کر کر. افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست کے بعد ہی صبح صبح ہی نیوز چینل اگر آپ آن کریں تو بہت سی افسردہ کرنے والی خبریں. بہت سے نوجوان بیٹے کیا ہے ون ویلنگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کئی ہلاک ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیزو جشن آزادی جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ادھم مچا کر یا ایک دوسرے کو نقصان بنائیں، بلکہ ہم شکر ادا کریں کہ آزاد ملک میں ہیں اور دعا کریں اور اپنے اندر بہتری کو لے کر آئیں کہ کیسے ہم اپنے ملک کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. ہاللیلویا،
हालेलुया, क्योंकि वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी. हालेलुया, हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं क्योंकि खुदावन ने हमें इस मुल्क में रखा है. हालेलुया. तो आइए खुदा के कलाम की तरफ हम बढ़ते हैं. खुदाम के कलाम में से हम यसाया 43 बाब 18वीं और 19वीं आयत खुदाम के कलाम में से देखेंगे. और आज का हमारा टॉपिक है गॉड ऑफ रेस्टोरेशन, बहाली का खुदा. और आज सुबह खुदावंद आपको बहाल करना चाहता है. ख़ानदान अगर टूट गए हैं, लड़ाई झगड़ा है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, टुडे गॉड वांट्स टू रिस्टोर योर रिलेशन. खुदावंद आपके रिश्तों को बहाल करना चाहता है. इब्लीस ने आपके बदन के अंदर बीमारी को डाला है. इब्लीस ने ख़ानदान के अंदर जो है नजासत को डाला है, बीमारी की तरह तरह की तासीरों को डाला है. एक बीमारी निकलती है, दूसरी आ जाती है. तो आज मैं डिक्लेयर करना चाहती हूँ, आज मैं बताना चाहती हूँ that God wants to restore your health. खुदावंद आपकी सेहत को बहाल करना चाहता है और खुदावंद आपको नया जोर बख्शना चाहता है. हालेलुया. कितने हैं जो चाहते हैं कि आज खुदावंद आपको रिस्टोर करे? हालेलुया. तो फिर जरा बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. यसाया 43 खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं. आए खुदावंद के कलाम में से निकालिए और उसकी 18वीं और 19वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे. यहाँ पर लिखा है, यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो. देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा. पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो. मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये बताता है, सिखाता है. खुदावंद हमें बहाल करना चाहता है, खुदावंद हमें आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन हम पुरानी बातों को छोड़ते नहीं, हम पुरानी बातों को भूलते नहीं. इब्लीस बार बार पास्ट की बातों को हमारे सामने लेकर आता है ताकि हम आगे ना बढ़ सकें, ताकि खुदावंद हमें बहाल ना कर सके. लेकिन यीशु मसीह की खूबसूरत बात, द मोमेंट यू एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट, जिस लम्हा आप यीशु को कबूल करते हैं, जिस लम्हा आप उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, वो आपके माजी को खत्म कर देता है. फिर आपका पास्ट भी यीशु को प्रेजेंट करता है, आपका प्रेजेंट भी यीशु को प्रेजेंट करता है. एंड यू बिलोंग टू जीसस. फिर आपका तल्लक यीशु के साथ हो जाता है. तो खुदावंद आपकी जिंदगियों के अंदर नया काम करना चाहता है, वो आपको रिस्टोर करना चाहता है, वो आपकी जिंदगी के अंदर बहाली को लाना चाहता है. लेकिन बहाली को हासिल करने के लिए आपको कदीम बातों पर सोचते नहीं रहना. हाय एंज में कर लेना ना, नहीं मेरे अजीजों, लेट इट गो. चीज़ों को जाने दीजिए, आगे बढ़िए. अगर कोई है जिसने आपका दिल दुखाया, माफ कीजिए, आगे बढ़िए. और फिर जब आप लेट इट गो कहेंगे तो फिर क्या है, खुदावंद आपको बहाल करेगा. वो आपको रिस्टोर तो करना चाहता है, बट आप रिस्टोर नहीं होना चाहते, आप बढ़ना नहीं चाहते, आप उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं. और एक खूबसूरत बात इस वर्ष में 19वीं आयत में जो हमने पढ़ी, क्या लिखा है? जैसे ही आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे, नया काम. वहां पर लिखा है परसों नहीं, बल्कि लिखा है अब, यानी नाउ, राइट नाउ वो फिर ज़हूर में आएगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इसी तरह अगर हम ज़बूर 107 उसकी 35वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ें तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, वो बियाबान को झील बना देता है और खुश्क ज़मीन को पानी के चश्मे. यानी मेरे अजीजों, सडनली फिलफौर वो क्या है, अगर आपकी जिंदगी बियाबान की मानद हो गई है, ड्राई, देयर इज नो होप, देयर इज नो पीस, खुश्क साली आपको नजर आ रही है, तो इमीडिएटली फिलफौर वो आपकी जिंदगी के अंदर क्या है, वो ब्लेसिंग्स को नाजिल करेगा. बियाबान को वो झील के अंदर, बियाबान ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी का एक कतरा
भी नहीं होता, लेकिन मेरा और आपका खुदा क्या करता है, वो आपको लबरेज करना चाहता है। झील, एक ऐसी जगह, लेक फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई आपकी जिंदगी के अंदर अगर खुश्क साली है किसी भी एरिया के अंदर, टुडे गॉड वांट्स टू ब्लेस यू। आज खुदावंद खुश्क जमीन को पानी के चश्मों में तब्दील करेगा। हालेलुया। कितने जो चाहते हैं कि आज आपकी जिंदगी की खुश्क जमीन के अंदर वो पानी के चश्मों को जारी कर दे। और मेरे अजीजों, जो पानी का चश्मा यीशु से बहता है वो कभी भी खत्म नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। आइए जल्दी से हम सीखेंगे कि कौन सी चीज़ों को खुदावंद बहाल करना चाहता है। पहली बात, रेस्टोरेशन ऑफ लाइफ, वो आपकी ज़िंदगी को बहाल करना चाहता है। अगर हम यूहन्ना 14 बाब की 16वीं आयत, वक्त कम है, मैं जल्दी से वर्ड्स को बोल रही हूँ, आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। यूहन्ना उसकी 14वें बाब की 6 आयत के अंदर लिखा है, राह और जिंदगी मैं हूं। जिंदगी कैसे आपकी बहाल होगी? कब? जब इब्लीस के साथ जुड़े होंगे, जब नाच रंग के साथ जुड़े होंगे, जब नशे के साथ जुड़े होंगे, जब गुनाह के साथ जुड़े होंगे। अगर गुनाह के साथ जुड़े रहेंगे तो कभी भी बहाल नहीं होंगे, फिर आपकी जिंदगी बियाबान रहेगी। लेकिन आज खुदावंद चाहता है, वो कहता है राह और जिंदगी मैं हूं। अगर आप कसरत की जिंदगी पाना चाहते हैं तो यीशु के पीछे हो लें। जब यीशु आपकी जिंदगी में होगा तो फिर आपकी जिंदगी बहाल ही रहेगी। फिर वो क्या है, आपको हरी हरी चरागाहों में लेके जाएगा और आपको कसरत की बरकत देगा। हालेलुया। दूसरी बात, रेस्टोरेशन ऑफ विजन। इमसाल की 29वें बाब की 18 आयत अगर हम पढ़ें तो लिखा है, जहां रोया नहीं वहां पर लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। बहुत से लोग मेरे अजीजों जिंदगी में विजन नहीं है। अगर आप उनसे पूछा जाए आपने क्या करना है, क्या कहते हैं, पता ही नहीं हमने क्या करना है। जब तक आप किसी चीज का ख्वाब नहीं देखेंगे, आप उसको पूरा करने की कोशिश कैसे करेंगे? जब आपके पास विजन ही नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मेरे अजीजों, इसलिए आज खुदा का पाकरू मुझे कह रहा है, वो ऐसे लोग जो खिदमत में भी आ चुके हैं लेकिन पास रोया नहीं है, आज खुदावंद आपकी रोया को रिस्टोर करना चाहता है। आम जिंदगी के अंदर अगर आप बढ़ रहे हैं और पता ही नहीं कि क्या करना है, बस ये सोच के जिंदगी गुजार रहे हैं 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो ऐसा नहीं मेरे अजीजों। खुदा के कलाम में लिखा है, वो इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। वो आपको आम जिंदगी नहीं देना चाहता। He wants to give you a life full of abundance। वो आपको ऐसी जिंदगी देना चाहता है जो बरकतों से माला माल हो। तो अगर आज आपका विजन रिस्टोर नहीं है, रोया नहीं है, आपकी जिंदगी का कोई प्लान्स नहीं है, तो खुदावंद आपके विजन को रिस्टोर करेगा। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, तीसरी बात, रेस्टोरेशन। आज खुदावंद आपकी होप को, आपकी उम्मीद को रिस्टोर करेगा। 12 बरस से बीमार थी, क्या हुआ? उन्हें ये कहना शुरू कर देता है, मेरा तो खुदा ही नहीं है, मेरी तरह भी सुनता ही नहीं। बहुत सी माओं को, बुजुर्ग माओं को ये कहते भी सुनता है, मेरे नाल तो हरे रब नाराज ही हो गया। नो मेरे अजीजों, अगर आप बीमारी की वजह से, इब्लीस की वजह से ना उम्मीद हो गए हैं, तो हम देखते हैं वो औरत जो 12 बरस से बीमार थी, जिसके 12 बरस से खून जारी था, अपना सारा माल तबीबों पर खर्च कर चुकी थी। जब उसने यीशु के बारे में सुना, जब उसने शाफी के बारे में सुना, फिलफार उसकी उम्मीद रिस्टोर हो गई, उसकी उम्मीद बहाल हो गई और उसने कहा, हाँ, अगर मैं यीशु के पास जाऊंगी, यीशु की पोशाक ही छू लूंगी तो मैं। सिर्फ फ्रंट लाइन वालों को कलाम आता है, यीशु की पोशाक छू लूंगी तो मैं।
और फिर क्या हुआ, जब वो वहां पर पहुंची तो भीड़ को देखकर क्या वो नाउमीद हो गई? क्या उसकी उम्मीद टूट गई? नहीं मेरे अजीजों, उसकी उम्मीद को यीशु ने बहाल किया। उसने भीड़ को देखा, उसने भीड़ की फिक्र ना की, बल्कि लोगों को धकेलती हुई, भीड़ को पीछे करती हुई यीशु के पास पहुंच गई। और जैसे ही यीशु की पोशाक को छुआ, उसने कहा, मुझे किसने छुआ? मुझ में से कुव्वत निकली। और वो औरत क्या वहां पर भी नाउमीद थी? क्या वहां पर भी घबरा गई? बल्कि दलेरी से कहने लगी, मैंने छुआ और मैं शिफा पा गई। हालेलुया। अगर आप भी 12 साल से, 15 साल से, 18 साल से, 28 साल से बीमार हैं, बेऔलाद हैं, बेरोजगार हैं, बेटा नहीं है, परेशानी की हालत में है, तो आज खुदा का पाक रूह मुझे कह रहा है, वो आपकी उम्मीद को रिस्टोर कर रहा है, वो आपके ईमान को बढ़ा रहा है। आइए उस औरत की तरह आप भी ईमान लाएं और अपने मौजूजे को हासिल करें। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, और वो क्या करता है? रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस हमें दिलेरी देता है। अक्सर औकात हम कहते हैं मेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं, मैं ये काम कर सकूं। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम मुझ में होकर सब कुछ कर सकते हो। अक्सर औकात आप भूल ही जाते हैं आप किसके बच्चे हैं। एक मिसाल, आज वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं उधर नहीं जाऊंगी, कि आप चिकन के बच्चे हैं या ईगल के। ईगल के बच्चे क्या करते हैं? दे फ्लाई ऑन हाई, बुलंदियों पर प्रवास करते हैं। आप मेरा अजीजों आम नहीं है, आप शाही कायनों का फिरका है, आप बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा के बेटे और बेटियां हैं। कितने बेटे और बेटियां हैं? आइए बुलंद आवाज से कहिए, यस आई एम। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप ना उम्मीद हो गए हैं, जितने लाइव देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं तन्हा हूं, तो आज वो आपके कॉन्फिडेंस को रिस्टोर कर रहा है। और आज के बाद आप कहना शुरू कर देंगे, गाना शुरू कर देंगे, मैं नहीं कल्ला मेरे नाले। आप इंसान होते हुए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आपका खुदा आपके साथ है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। फिर आपके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। आज खुदामंद मुझे दिखा रहा है, मुझे बता रहा है, बहुत से लोग अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर चुके थे। आज के बाद मेरे अजीजों, अगर ज़बूर 20 को आप पढ़े, जब मैं दुआ करती हूँ तो मैं अपनी दुआ के अंदर इस वर्ड्स को बोलती हूँ और मैं कहती हूँ, खुदामंद वो तो झुके और गिर पड़े, हम उठे और सीधे खड़े हैं, क्योंकि हमारा तवक्कल तुझ पर है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इधर किसी आम के साथ रिश्तेदारी हो, जान पहचान हो, तो पैर ही नहीं थले लग दे, पता है ना मेरा फलाना जानने वाला है, तो फिर आपके पाँव क्यों ना नीचे लगे? फिर आप क्यों ना फख्र करें? इस दुनिया का बनाने वाला, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, वो आपका खुदा है। और खुदा से बढ़कर एक और रिलेशन है, उसने आपको हक बख्शा कि आप उसको अब्बा यानी आप बाप कहकर पुकार सके। तो आज के बाद मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, कहीं रेफरेंस की जरूरत हो, इधर उधर फोन ना घुमाया करें। ये जो घुटने हैं ना, इनका इस्तेमाल किया करें, हाथों का इस्तेमाल किया करें, होंठों का इस्तेमाल किया करें। मैं हमेशा कहती हूँ, जो हाथ दुआ में खुदा के आगे बढ़ते हैं, जो घुटने खुदा के आगे झुकते हैं, जो आंखें खुदावन के आगे आंसू बहाती हैं, फिर किसी इंसान दे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। कितना का ईमान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आप भी दिलेरी के साथ गाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ, दुआवा मेरी सुनदा है, मेरा रब सोना है। और मेरे अजीजों, फिर आपको कॉन्फिडेंस होगा कि वो आपकी दुआओं को सुनता है। आज अगर आप लाइव देख रहे हैं, अबलीस ने आपके कान में झूठ बोल बोल कर ये डाल दिया है कि तू तन्हा है। अबलीस मेरे अजीजों पहला काम पता क्या करता है? वो आपको आइसोलेट करना चाहता है, रिश्तेदारों से भी आपको अलग करना चाहता है। अबलीस आपके कानों में डालता है, फलाने तेनू है क्या है? मेरे अजीजों लेट इट गो, माफ कीजिए।
آپ کا کام نہیں ہے جج کرنا، وہ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آپ خدا کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کریں اور دیکھیں کہ کیسے خداوند آپ کو. پھر کیا ہے ابلیس چرچ جڑے جاندے ویکھیا اج تے تینوں دعا دا موقع ہی نہیں ملیا، اج تے تینوں مائک ہی نہیں ملیا، اگے کرسی نہیں ملی پیچھے نہیں. آپ آہستہ آہستہ ان باتوں سے ابلیس کی سن کے ابلیس واقعہ نا نکرے لا دیندا ہے، کارنر پہ آپ کو لے جاتا ہے، سب سے الگ کر دیتا ہے. اور جب آپ الگ ہو جاتے ہیں پھر کیا ہے؟ اسٹرینتھ ویک. چرچ ایک ایسی جگہ ہے یہاں پر خدا کا گھر جو ہے نا آپ کا بدن ہے. چرچ از اے بلڈنگ ویئر دا فیملی آف گاڈ fellowship together, pray for one another. چرچ ایک ایسی بلڈنگ ہے جہاں پر مسیح کا بدن مل کر دعا کرتا ہے. تو چرچ میں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کوئی پریشانی آتی ہے، خوشی آتی ہے، ہم مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ اسی چرچ جانا ہی چھڑ دینے، کسی کا کچھ نہیں جاتا. چرچ آپ چھوڑ دیں گے نا، خدا اس چرچ کے اندر 5 نئے اور لوگوں کو لے آئے گا برکت کے لیے. آپ کا نقصان ہوگا. ابلیس آپ کو علیحدہ کر کے کہتے ہیں نا کسی نو تسی مارنا ہوئے علیحدہ. وہ بچپن میں ہم سٹک والی کتنوں نے سٹوری سنی تھی کہ اگر ایک سٹک ہوتی ہے جلدی سے ٹوٹ جاتی ہے. بنچ آف سٹکس جو ہے وہ توڑنا جو ہے نا مشکل ہے. اکثر اوقات آپ اپنے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن بڑوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تجربے کی باتیں ہوتی ہیں. کیا ہے کہ جب آپ اکٹھے رہیں گے تو خدا کیا ہے؟ برکت دے گا. آپ جو فیلوشپ کے اندر رہیں گے، چرچ جائیں گے، خدا کے گھر میں رہیں گے، خدا کے خادمین کے ساتھ رفاقت میں رہیں گے تو پھر برکت پائیں گے. مشکل آئے گی خداوند بحال کر دے گا. اور آئیے لاسٹلی، آج چونکہ ہم انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کریں، آئیے اپنی بائبلز کو میرے ساتھ کھولیے. دوسری تواریخ. اب ہم دیکھیں گے ریسٹوریشن آف کنٹری. خداوند ملک کو بحال کرتا ہے اور کسی اور کے وسیلہ سے نہیں، آپ کے وسیلہ سے. آئیے نکالیے میرے ساتھ دوسری تواریخ اس کا 7واں باب 14ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کرے اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. میرے عزیزو، ملکوں کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں بحران آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں روپے پیسے کی کمی، معاشی بحران آ جاتا ہے. لیکن مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں بجائے کہ ہم کمپلینس کریں، بجائے کہ ہم ادھر ادھر باتیں کریں، خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے؟ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے. کتنے یہاں پر بیٹھے جو خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں؟ کئیوں نو بڑا شوق ہوندا ہے اپنے نام دے نال اپنی ذات لگانے کا. پوچھو بھی نہ، بڑا خوش ہو کے کہیں گے. ڈاکٹر صاحب نے میری طرف دیکھا ایک دم سے، آپ کو نہیں کہا، بڑا خوش ہو کے بتائیں گے او تیری بھی یہی ذات ہے، میری بھی یہی ذات ہے، اسی تے پہن پرا ہوئے. میرے عزیزو، آپ بھی مسیح کے بیٹے ہیں، میں بھی مسیح کی بیٹی ہوں، ہم مسیح کا خاندان ہے. ہاللیلویہ! سب سے خوبصورت اور فخر کی بات. ہاللیلویہ! تو میرے عزیزو، جب میں اور آپ ہم مل کر کیا کریں گے؟ کلام میں لکھا ہے جو کس کے نام سے؟ ابلیس کے نام سے بھی پہچانے جانے والے بڑے لوگ ہیں اس دنیا میں. انہوں نے دسنا بھی نہیں پائے گا کہ وہ ابلیس کے ہیں. ان کی حرکتوں سے 10 منٹ تاڑے کول کھلو جان گے نا، تانوں پتہ چل جائے گا کہ واقعی ابلیس دے نے. ٹھیک کہہ رہی ہو نا؟ لیکن اگر کوئی خدا کا بیٹا اور بیٹی آپ کی پاس کھڑا ہوگا، آپ اس کی باتوں سے، اس کے رویے سے جانیں گے کہ یہ مسیح کا بیٹا اور بیٹی ہے. تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے، اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ خاکسار بن کے. ہم خدا کے لوگ تو ہیں لیکن اکثر اوقات اکڑ بڑی آ جاتی ہے. دعا کرنے لگے بھی خاکسار بننا نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے خاکسار بن کر، humble yourself. جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا خداوند اس سے بڑا بنائے گا. جب ہم دوسروں کو اگنور کریں گے، محبت کو لیں گے، کہیں گے اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اچھا فلاں نے مجھے کہہ دیا، کوئی بات نہیں، شاید وہ غصے میں تھا، تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے. لیکن ہمارا کیا رویہ؟
ओ कि अपने आप ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ज़्यादा पता है। ये रोज़मर्रा की हमारी बातें हैं। मुझे ज़्यादा कलाम पता है, फलां को क्या पता हो, मैं तो फलां जगह से पढ़ा हूँ, मैं तो फलां जगह से पढ़ी हूँ। मेरे अजीज़ों, बहुत अच्छी बात है आप एजुकेशन हासिल करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे मसीही बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ़ख्र आपने अपनी तालीम पर नहीं करना, फ़ख्र करना है तो अपने ज़िंदा खुदा पर करना है। और जब दुआ करनी है तो ये नहीं, कई लोगों ने घर में रोज़ा रखा होता है, घर वालों को वक्त डाला होता है उस बच्चे ने कि आज इसका रोज़ा है। नहीं, अपने आप को खाकसार करके, आप देख रहे हैं इर्द गिर्द के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो गई, महंगाई हो गई है। हम क्या कर सकते हैं? हम दुआ कर सकते हैं, खुदावंद को कह सकते हैं, खुदावंद तू करने की कुदरत रखता है, तू सिचुएशन को चेंज कर। और फिर क्या लिखा है कि वो कहाँ से सुनेगा? आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करेगा और उनके मुल्क को बहाल करेगा। खुदावंद आपकी दुआ के वसीला से आपके मुल्क को बहाल करेगा। आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, मसीहों की इस मुल्क के लिए बहुत सी खिदमात हैं। जब हम देखते हैं जब आज़ादी को हासिल किया उस वक्त से लेके आज तक मसीहों की इस वतन के लिए डेडिकेशन है, सर्विसेज है। और जहाँ पर भी मसीही हमारे किसी भी शोबा में है, बड़ी डेडिकेशन के साथ अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए काम करते हैं। तब भी बहुत से लोगों ने अपनी जान का, माल का नजराना दिया और आज भी बहुत से लोग देते चले आ रहे हैं। और यही अपील है इस जश्न आज़ादी के मौका पर कि हमें क्या है? दुआ की ज़रूरत है अपने मुल्क के लिए, ताकि खुदावंद हमारे मुल्क को बहाल करे। हमारा मुल्क बहाल होगा तो हम भी बहाल रहेंगे। तो मेरे अजीज़ों, बजाय कि हम इधर उधर की बातें बोलें, आपने कहना है मेरी दुआ से मेरा मुल्क बहाल होगा। मैं दुआ कर रहा हूँ खुदावंद मेरे मुल्क को सरफराज करेगा। जब हम ट्रैवल करते हैं कोई हमारा नाम नहीं पूछा जाता, कुछ और नहीं पूछा जाता। जिस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं, अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट हम देते हैं कि वी आर पाकिस्तानी, खुदावंद ने हमें यहाँ पर रखा है। तो मेरे अजीज़ों, हमें इस मुल्क के लिए बरकत चाहनी है। और लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। बहुत कुछ हो सकता है। एक रास्तबाज दुआ करता है तो शहर सरफराजी पाता है, जब बेशुमार रास्तबाज दुआ करेंगे तो मुल्क सरफराजी पाएगा। हालेलुया। आए सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम आज के खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अगर आज आपको रेस्टोरेशन की ज़रूरत है, अगर आपको बहाली की ज़रूरत है, हेल्थ में बीमार हैं, ना उम्मीद हो गए हैं, टुडे गॉड वांट्स टू रिस्टोर योर हेल्थ, गॉड वांट्स टू रिस्टोर योर होप। ना उम्मीद हो गए हैं, दिलेरी नहीं है, कॉन्फिडेंस को खो दिया है, टुडे गॉड वांट्स टू रिस्टोर योर कॉन्फिडेंस। आज खुदावंद आपको बहाल करना चाहता है। आइए अपने सरों को झुकाइए और खुदावंद की हज़ूरी में दुआ कीजिए। ओ रबा शांते रे बे बे बे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल खुदस पा, खुदावंद आज की खूबसूरत कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती कि तूने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। आज के कलाम का हम सारा जलाल, इज़्ज़त, ऑनर तेरे बेटे यीशु के नाम को देते। मेरा ईमान है खुदावंद तू बहुतों को बहाल कर रहा है, बहुतों की हेल्थ को रिस्टोर कर रहा है, रिलेशंस को रिस्टोर कर रहा है। इन एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ वेयर दे नीड रेस्टोरेशन। खुदावंद इनकी ज़िंदगी में जहाँ भी बहाली की ज़रूरत है, मैं नहीं जानती लेकिन तू जानता है, इन्हें बहाल कर। और खुदावंद मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों के साथ मिलकर अपने वतन पाकिस्तान की सलामती की दुआ चाहती। खुदावंद हम इस वतन के लिए तरक्की की दुआ चाहते हैं। खुदावंद हर तरह के दुश्मन के मंसूबे यीशु के नाम से जाते रहे। खुदावंद इस मुल्क में बसने वाला एक एक शख्स बरकत पाए, बहाल हो और हम तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। हुकूमत के लिए, अदलिया के लिए, अदारों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और देख पा खुदा जजेस के लिए, लॉयर्स के लिए। खुदावंद तमाम खुदावंद जिस भी जगह पर खुदावंद लोग इस मुल्क को सर्व कर रहे हैं, पाक आर्मी के अंदर, पाक नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर,
कर। खुदा हम एक एक के लिए तेरी बरकत चाहते, तो एक एक को छू, कसरत की बरकत दे। पाकिस्तान के तमाम चर्चिस के लिए खुदावन मैं तेरी बरकत चाहती, तमाम मसीहियों के लिए तेरी बरकत चाहती, तमाम दूसरे मज़ाहिब के बसने वाले बहन भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहती। और आज जब खुदावन जश्न आज़ादी सेलिब्रेट की जा रही है, तो खुदावन हम इस मुल्क पर तेरे रहम को मांगते, तेरे रहम को मांगते। खुदावन तू इस मुल्क पर रहम कर, अपना हाथ बढ़ा और इस मुल्क को बहाल कर और बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन।